गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Statistics Standard 11th. Now we are into chapter number 5, that is Skewness of a frequency distribution. So I request each and every student to sit with notebook, calculator and pen. I will be helping you out in solving the sums. Okay, because in this particular chapter, as I have told you already in the video itself, that we got to find median, mode, mean, standard deviation, quartiles, which we have already found in the earlier chapters. So I think that you know it very well how to find mean, median, mode and quartiles and standard deviation. So without wasting any of your time, okay, so we'll be directly looking into the illustrations. Then while solving the exercise, I'll be helping you out how to solve the sums. So I want you all people to sit with the notebook and calculator. So along with me, you will be solving the sums. Thank you once again. Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Statistics Standard 11th, chapter number 5, Skewness of a frequency distribution. I hope so you all are ready with notebook, calculator and pen. So in the previous lecture we have solved till question number 3 of exercise 5.1. Continuing further with question number 4. The students of Standard 11th have collected the data about profits in crore rupees of IT companies. Find the Carl Pearson's coefficient of skewness from these data and interpret it. I have told you earlier itself in the last lecture that you got to try the sum, and I hope so. As per my instructions, many students have already tried the sum. So you are given with profit means considered as class, number of companies as frequency. Okay, as we can see, the class length is same 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Yes, the class length is same. Okay, so and highest frequency is also 1, so we can apply mode, we can find mode. So first column you might have prepared the mid values 6, 8, 10, 12, 14, 16. Then DI you might have assumed 10 as 0, ऊपर जाए तो -1, -2, नीचे आए तो 1, 2, 3. Then you have multiplied FI with DI, then आपने उसको प्लस किया. So you might have got sigma FI DI. The next column आपने बना है FI DI square, FI DI into DI, आपको मिला होगा FI DI square. कम ऑन जितना का बाकी है, कम ऑन जल्दी से टेबल कंप्यूटर पे करें. जितने का भी बाकी है फटाफट सारे कॉलम्स कंप्लीट कर. पहला मिड वैल्यू, देन DI, देन FI DI, then FI DI square. As I told you earlier itself कि आपको थोड़ा बहुत तो आता ही है. हमने इतने सारे सम्स किए हैं. And even you know how to find median, mean, mode, standard deviation. तो I don't think so कोई भी इश्यू यहाँ पे हुआ होगा. So x bar equal to a plus sigma FI DI upon n multiply by c. इससे आपको मीन का आंसर मिल जाएगा. दैन मोड के लिए फॉर्मूला अप्लाई करनी है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2 इंटू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई सी. आपका L होगा 9
एफ एम होगा 20 माइनस एफ वन होगा 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 एज अ क्लास लेंथ। तो आपको मोड मिल जाएगा इससे। मोड मिल जाने के बाद यू गॉट टू फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी। रूट के अंदर रखना है, मल्टीप्लाई बाय सी रूट के बाहर आएगा। Hope so you got the answer for standard deviation. Then you got to find the skewness x bar minus mo. Find the skewness x bar minus mo. Then find coefficient of skewness x bar minus mo upon s. Coefficient of skewness x bar minus mo upon s, x bar minus mode upon s, mean minus mode upon s, standard deviation. If the answer is in plus, it is a positive skewness. If it is in minus, it is a negative skewness. Okay. Next question. Question number 5. The following frequency distribution gives the amount of annual depreciation in lakh rupees of 38 companies. Using this information, find skewness and coefficient of skewness by Carl Pearson's method. Say the type of skewness, positive or negative. आपको ये दिखाना है, मतलब in short you got to interpret this. So as we can see, class length is unequal. Okay, class length is unequal. Number of companies as frequency. इसको ले लिया आपने classes, amount of annual depreciation को classes ले लिया. Okay, next column बनेगा mid value 7, 9, 10, then 11 to 20, 15.5, 21 to 24, 22.5. 25 to 36 मीन्स प्लस किया तो 61, 30.5 तो मिड वैल्यू आ गया। दैन डी आई, आप एक्स आई में से कोई भी नंबर को एज्यूम कर ले, एज्यूम कर लीजिए 10 को एक्स आई में से, सिंपल। ऊपर जाए तो माइनस, अब 10 में से आपको सब माइनस करना पड़ेगा, अब माइनस में माइनस तो नहीं आएगा, बस क्लास टेंथ अनइक्वल है। आपने 10 एज्यूम किया तो 7 माइनस 10 एक्स आई माइनस 8 दैट्स माइनस 3, 9 माइनस 10 माइनस 1, 10 माइनस 10 0, देन 15.5 माइनस 10 तो 5.5। तो उस तरीके से आप करते रहिए, आपको डी आई मिलेगा। डी आई मिलने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी को डी आई से मल्टीप्लाई करना है, एफ आई डी आई फाइन करना है। एफ आई डी आई फाइन कर लेने के बाद आपको एफ आई डी आई स्क्वायर करना है। एफ आई डी आई के कॉलम के इंडिविजुअल नंबर को आपको डी आई से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट एफ आई डी आई स्क्वायर। एफ आई डी आई स्क्वायर मिलने के बाद आपको सी एफ आई करना है, बिकॉज यहाँ पर मोड पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्लास लेंथ इज अनइक्वल, तो मोड पॉसिबल नहीं है, तो आपको एफ आई सी एफ आई फाइन करना पड़ेगा। ओके, कंप्लीट करें कॉलम फटाफट, जिसका भी बाकी है वो। आई होप सो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। आई हैव टोल्ड यू दैट यू गॉट टू रेफर द इलस्ट्रेशंस इफ इट इज पॉसिबल, देन इन द इलस्ट्रेशन ऑल्सो दिस टाइप ऑफ सम इज ऑलरेडी गिवन। सो इफ यू हैव गॉन थ्रू इट, देन आई होप सो यू हैव गॉट द आंसर्स इवन। सो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आर डी आई अपॉन एन, फॉर्मूला अप्लाई करनी है आपको। मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ आई अपॉन एफ इंटू सी। एन अपॉन 2 आप करके देख लीजिए, 2 + 3 5 + 4 9 + 7 9 + 7 16 + 12 28 + 10 38 38 अपॉन 2 दैट इज 19 19 तो किस में आएगा 2 5 9 मैसेज हुई। सो 9 9 16, so L plus n upon 2 minus CFI upon F into C करके आप फार्मूला अप्लाई करें। अप्लाई करके आप मीडियन की फार्मूला फाइंड यहाँ पे कर लें। जैसे आप मीडियन का फार्मूला फाइंड यहाँ पे कर लोगे, ओके, फिर आपको S इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर करके आपको S फाइंड कर लेना है। जैसे आप S फाइंड कर लोगे, ओके, देन आपको स्क्यूनेस की फार्मूला 3 इंटू एक्स बार माइनस एम लिखना है, और कोएफिशिएंट की फार्मूला 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन एस करना है। तो इसके बेस पे आपको आंसर्स अवेलेबल यहाँ पे हो जाएंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, एज आई कैन सी इन क्वेश्चन नंबर 6 इवन क्लास लेंथ इज अनइक्वल। ओके, तो वन सेकेंड आपको मीडियन ही फाइंड करना पड़ेगा।
मीडियन आपको फाइंड करना पड़ेगा। वही सेम कॉलम जो हमने अभी ऊपर ड्रॉ किया वही सेम कॉलम आपको यहाँ पे भी ड्रॉ करना पड़ेगा, मीडियन करना पड़ेगा। एक्स बार की फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आर डी आई अपॉन एन। ओके, मीडियन के फॉर्मूला एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ आई अपॉन एफ इंटू सी। देन एस इक्वल टू रूट सिग्मा एफ आर डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आर डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर। और स्क्यूनेस की फॉर्मूला 3 इंटू एक्स बार माइनस एम और जे इक्वल टू 3 एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। अप्लाई कीजिएगा फॉर्मूला एंड देन फाइंड द आंसर। आपको टाइप बताना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है आपको बताना, ठीक है ना। Question number 7. -3 to the temperature in Celsius of a tourist place of 60 days in the year 2014 is as follows. Using this information, find its skewness and its coefficient by Karl Pearson method. Say the type of skewness. आपको क्लास दिया अनइक्वल, मतलब वन सेकेंड आपको मीडियन वाला ही करना पड़ेगा। वही सेम कॉलम, पहले मिड वैल्यूज़, देन डी आई, देन एफ आर डी आई, देन एफ आर डी आई स्क्वायर, देन सी एफ आई। ओके, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आर डी आई अपॉन एन। Then median equal to L plus n upon 2 minus CFI upon F into C. S equal to under root sigma FI DI square upon n minus sigma FI DI upon n whole square. And skewness equal to 3 into x bar minus m और j equal to 3 into x bar minus m upon s। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा एंड देन फाइंड द आंसर्स। आई होप सो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको सॉल्व पे करना है। ट्राई इट आउट। थोड़े से समय अगर आप खुद ट्राई करोगे तो आई होप से प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी एंड यू विल फील द कॉन्फिडेंस। सारे समय का मैं करवाऊँगा 1 by 1। तो यू आर क्वाइट मैच्योर स्टूडेंट्स इन कॉमर्स नाउ, नॉट इन प्राइमरी सेक्शंस। क्या आपको ईच एंड एवरी सम मुझे बोर्ड पे करवाना पड़ेगा। आई होप सो आप ट्राई कर सकते हैं, थोड़े से सम्स ट्राई कीजिए। और दिस ऑल सम्स हमने पहले किए हुए हैं, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट। ऐसा नहीं है कि हमने किया ही नहीं है। मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिवीजन हमने प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। जस्ट स्क्यूनेस की फॉर्मूला अप्लाई करनी है, कोएफिशिएंट की फॉर्मूला अप्लाई करनी है, नथिंग एल्स इज दैट। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप ट्राई कीजिए एंड आई नो आप ट्राई करोगे तो आपका आंसर आएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।